إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم هم الأخسرون ورب الكعبة هم الأخسرون ورب الكعبة هم الأخسرون ما من رجل يموت ولم يؤدي زكاة ماله إلا جعل الله في عنقه يوم القيامة صفائح فتحت من نار. حضرات گرامی، اللہ رب العالمین کا بڑا شکر و احسان ہے کہ ہم لوگوں نے اس مبارک مہینے کے 20 روزے مکمل کرنے کے بعد آج 21ویں روزے میں داخل ہو چکے ہیں. اللہ رب العالمین سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہماری عبادات کو قبول کرے. ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان 10 دنوں میں جو معمول تھا اسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں. اذا دخل العشر شد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میزرہ وایقظ اہلہ واحیا لیلہ. جیسے ہی رمضان کا آخری عشرہ داخل ہوتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو مکمل تیار کر لیتے تھے، کمر بستہ ہو جاتے تھے، اپنے اہل کو اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے اور شب بیداری کا اہتمام کیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمانوں غور کرنے کی بات ہے، یہ چند دن جو گنتی کے ہیں، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ان دنوں میں ہم لوگ شب بیداری کریں تو آپ یقین جانو کہ بہت سارے فائدے ہم اپنے دامن میں سمیٹ لیں گے. ان چند دنوں میں اگر مکمل 10 دن کو یہ قیام نہیں کر سکتا تو خصوصیت کے ساتھ 5 راتوں کا قیام اس کے لیے بڑی فضیلت اور بڑی اہمیت کا ہے. اس کے لیے دنیا اور آخرت کی خیرات کو جمع کر لینے کا ہے. اس کے لیے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی گناہوں کو پیش کرنے کے بعد گناہوں کی بخشش کا پروانہ حاصل کر لینے کا ہے. لہذا میرے بھائیوں، ہم کتنے بد نصیب ہوں گے اگر ان ایام کو پانے کے بعد ہم ان خیرات سے اپنے دامن کو نہ بھر لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام کے داخل ہوتے ہی اپنے آپ کو مکمل طور پہ عبادت کے لیے فارغ کر لیتے تھے. آپ کی خاص عبادات میں دعا، قرآن کریم کی تلاوت اور قیام اللیل یا قیام رمضان، جسے اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے، یہ 3 عبادات بطور خاص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
इन रातों में हुआ करती थी। और इन तीनों इबादत में क़ियामुल लैल, जिसकी बहुत सारी फजीलत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है। आपने बयान किया, मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जो शख्स भी रमज़ान में क़याम करेगा ईमान और एहतिसाब की नीयत से, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन पर उसका ईमान पुख्ता हो और अल्लाह ही से उसे अज्र की उम्मीद हो, तो ऐसे इंसान के क़याम के बदले अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाहों का कफ़ारा कर देते हैं। गौर करने का मुकाम है कि रमज़ान का क़यामुल लैल इंसानों के गुनाहों का कफ़ारा है। मुसलमानों, हम में से हर इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन की बख्शिश का और अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत का मुहताज है। लिहाजा हमें चाहिए कि इन बातों में अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होकर अपनी आजिज़ी का इजहार करें और क़यामुल लैल के ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़र्रुब हासिल करने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तारीफ़ की कुरान मुक़द्दस में और ऐलान कर दिया, ततजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि'i यदऊन रब्बहुम ख़ौफ़न व तमअन व मिम्मा रज़क़नाहुम यunfiqून। अल्लाह के नेक बंदे और कामयाब बंदे वो हैं जो रातों को अपने आप को बिस्तरों से अलग कर लेते हैं और रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं खौफ और तमा के साथ, और हमने उन्हें जो रिज़्क़ दे रखा है उसमें से वो खर्च करते हैं। मेरे भाइयों, यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात को सराहत के साथ बयान किया कि अपने आप को बिस्तर और ख्वाबगाह से अलग कर लेना यह अल्लाह के कामयाब बंदों की दलील और अलामत है। और ये भी बताया कि वो रात में क़याम करने के बाद, शब्बेदारी करने के बाद नऊज़ बिल्लाह गुफ्तगू सुनीद या दुनियावी मामलात का तस्फिया या दोस्त अहबाब से गुफ्तगू में खर्च नहीं करते, बल्कि वो लोग अल्लाह से दुआ में, उसकी आयात की तिलावत में और नेक कामों में अपने औकात को खर्च करते हैं। यहाँ आप गौर कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर इंसान के बारे में जो क़यामुल लैल करता हो उसके बारे में खबर दी। वो अपने रब से दुआ करते हैं खौफ और तमा के साथ। क्या मतलब इसका हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक मुस्लिम अल्लाह रब्बुल आलमीन से जब भी दुआ करता है तो उसके सामने या उसका मतबह नज़र दो चीज़ें हुआ करती हैं। एक तो उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाब का, अल्लाह के इंतकाम का, अल्लाह की जहन्नम का उसे खौफ हुआ करता है, और दूसरी बात ये होती है कि उसके दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से उम्मीद और अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमत का अपने आप को मुस्तहिक कर जानता है। मोमिन का मामला इन दोनों चीज़ों के बीच होता है। अहले बिदात में एक तबका वो है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के लिए सिर्फ खौफ को, जहन्नम के डर को, अल्लाह की गिरफ्त से बचने के लिए वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करता है। और इसके बरअक्स एक ऐसा तबका है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में सिर्फ उसकी जन्नत की लालच, सिर्फ उसकी नेमत की उम्मीद, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस बात का हुक्म दिया कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें इन दोनों चीज़ों को सामने रखते हुए। मुसलमान होने की हैसियत से अगर हमारी ज़िंदगी में कोई गलती या गुनाह सरज़द हो जाए तो अपनी गलती पर हम नादिम हैं, उस गलती की तौबा अल्लाह रब्बुल आलमीन से करते हैं, लेकिन गलती के सुदूर या सरज़द होने का मतलब हरगिज़ नहीं होता कि हम लोग अल्लाह की रहमत से अपने आप को नाउमीद बना लें, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मग़फ़िरत से अपने आप को दूर समझ लें। और इसी के बरअक्स अगर नेकियों को अंजाम दे रहे हम लोग, तो नेकियों को अंजाम देने का मतलब ये नहीं होता कि अपने आप को अल्लाह रब्बुल आलमीन की गिरफ्त और उसके अज़ाब से आज़ाद समझें। नेकी अगर अंजाम दें तो नेकी के अंजाम देने के साथ साथ हमें अपने गुनाहों पर, अपनी गलतियों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने की ज़रूरत है। क्यों? हम में से कोई इंसान इस बात को नहीं जानता कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान की गिरफ्त किस मामले को लेकर कर सकता है, या इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन सजा किस गुनाह की बिना पर देगा, या अल्लाह रब्बुल आलमीन की बख्शिश इंसान के लिए किस नेकी की बिना पर हो जाएगी। इस सिलसिले में आपने वो दो मशहूर अहादीस सुना होगा जिन अहादीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत के बारे में इस बात की खबर दी कि उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नम में डाल दिया। हालांकि उस औरत का कोई बड़ा जुर्म, उस औरत की कोई बड़ी गुनाह नहीं थी, बल्कि उसका जुर्म सिर्फ ये था कि उसके घर में कीड़े मकोड़े जो उसे हैरान करते थे, उसने बिल्ली को पकड़ के बांध दिया।
ताकि वो कीड़ों को खा जाए और फिर उसे कीड़ों के शर से निजात मिल जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि उसने बिल्ली को आज़ाद नहीं छोड़ा कि वो अपनी भूख को पूरा कर ले, और न ही उसे खाने पीने की चीज़ दिया यहाँ तक कि वो तड़प कर मर गई। नबी बयान करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस औरत को जहन्नम में दाखिल कर दिया। बहरसूरत मेरा अर्ज करने का मतलब ये हुआ कि आप लोग शब-ए कद्र में या आखिरी आशरे की ताक रातों में अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर अपने आप को बेदार कीजिए, कुरान की तिलावत में और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करने में, लंबे क़याम में, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़याम के सिलसिले में आपने बारहा सुना होगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात में क़याम करते, इतना तवील क़याम होता और उसी तवील क़याम के बकद्र आपका रुकू हुआ करता था और रुकू के बकद्र आपका सजदा हुआ करता था। बसा औकात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निस्फ़ लैल का क़याम किया और बसा औकात उससे ज़्यादा क़याम किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी में रमज़ान के आखिरी अशरों के अलावा दीगर माह के किसी आशरे में पूरी शब बेदारी का सबूत नहीं मिलता। मुसलमानों, हमें इस आशरे को गनीमत समझते हुए अपने आप को अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने बेदार करने की ज़रूरत है। और बेदार का वो माना, बेदार का वो मफ़हूम जो नबी की ज़िंदगी में पाया जाता था, हज़रत आयशा बयान करती हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन रातों में नमाज पढ़ते थे, इतना तवील नमाज पढ़ते थे, इतना हसीन नमाज पढ़ते थे कि तुम नमाज की तिलावत को, सलात के हुस्न को मत पूछो, आप बहुत खूबसूरती के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने क़याम करते। आपने भी बयान किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं अतानी जिब्रील फ़क़ाल या मोहम्मद इश्क़ मा फ़ीक फ़इन्नका मय्यित। मेरे पास जिब्रील आए और जिब्रील ने कहा मोहम्मद तुम जितना चाहो ज़िंदगी गुजारो, लेकिन तुम्हें एक दिन मौत से दोचार होना है। और उसके बाद फिर दूसरी बात कहा, जिब्रील ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाह बिमन शि'ता फ़इन्नका मुफ़ारिक़ुहु, तुम जिससे चाहो मोहब्बत करो, लेकिन याद रखो एक दिन तुम अपने महबूब को छोड़ कर जाओगे। और तीसरी बात नबी से कहा वअमल मा शि'ता फ़इन्नका मजज़ून अन्हु, जो चाहो तुम अमल करो, लेकिन तुम ये एतकाद रखो कि तुम्हें तुम्हारे अमल का बदला देना होगा। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया जिब्रील अमीन के कौल के मुताबिक, जिब्रील ने नबी से कहा वअलम अन्न शरफ़ल मुमिन क़ियामुहु बिल्लैल, जान लो किसी मोमिन की ज़िंदगी में शराफत और किसी मोमिन की ज़िंदगी का नूर उसका रात में क़याम करना है। मेरे भाइयों, यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील ने बयान किया कि किसी इंसान की शराफत की अलामत ये है कि वो पंज वक्ता सलात के एहतमाम के साथ साथ क़यामुल लैल का एहतमाम करे ताकि उसकी ज़िंदगी में शरफ और कामयाबी नसीब हो। यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शराफत और कामयाबी आपका क़यामुल लैल बताया गया है। बहरसूरत दुआ जो इन रातों में आप करेंगे उस दुआ के चंद आदाब हैं, ज़रूरी है उन आदाब का बरतना ताकि हमारी दुआएं अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में कबूल हों। आमतौर पर लोग जहालत और नादानी के नतीजे में दुआ तो करते हैं, लेकिन दुआ के फ़ायदे से अपने आप को महरूम कर लेते हैं। मेरे भाइयों, आपको ये बात कभी फरामोश नहीं करनी चाहिए कि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से जितनी ज़्यादा दुआ करेंगे, जितना गिरिया वज़ारी के साथ दुआ करेंगे, अपनी आजिज़ी के इजहार के साथ जो दुआ करेंगे, ऐसे में अल्लाह रब्बुल आलमीन खुश होता है। और इस बात का ऐलान कर दिया वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। रब्बुल आलमीन ने इस बात का ऐलान कर दिया तुम सारे लोग मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा, और वो लोग जो मुझसे दुआ नहीं करते ऐसे लोग रुसवा होकर जहन्नम में दाखिल किए जाएंगे। मुसलमानों, दुआ एक बेहतरीन अमल है, दुआ एक जामे इबादत है। खुसूसन ये जामे इबादत रमज़ान के आखिरी आशरे में आपके लिए पूरे साल के रिज़्क़ को, पूरे साल की रहमत को अपने दामन में समेट लेने का मौका अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनायत किया है। इसी बात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। हमने इस किताब मुबीन को एक मुबारक रात में नाज़िल किया, और ये मुबारक रात ऐसी रात है जिस रात में अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरे साल का तस्फिया करता है, पूरे साल इंसानों के अमल का फैसला करता है, पूरे साल में इंसान को कितना रिज़्क़ मैसर होने वाला है, पूरे साल में इंसान को कितनी कामयाबी और नाकामी मिलने वाली है।
इन तमाम चीज़ों का मुहकम फैसला अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी जानिब से करते हैं। लेकिन हमें चाहिए कि इन रातों में बेदार होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के मुताबिक, जैसा कि आपने बयान किया, यंज़िलु रब्बुना इला समाई दुनिया हिनमा यबका सुलुसुल लैलिल अखीर फयक़ूल हल मिन मुस्तग़फिरिन फ़अग़फ़िर लहू हल मिन मुस्तजीबिन फ़उजीब लहू हल मिन मुस्तरज़िक़िन फ़अरज़ुक़ लहू। क्या कोई ऐसा इंसान और ऐसा बंदा है जो मुझसे मग़फ़िरत का तालिब हो, मैं उसकी बख्शिश करूं? क्या कोई रिज़्क़ का तलबगार है कि मैं उसे रिज़्क़ दूं? और क्या कोई दुआ करने वाला है जिसकी दुआ को मैं कबूल करूं? मेरे भाइयों, नबी बयान करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब रात का एक तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है, आसमान दुनिया पर नाज़िल होने के बाद बंदों में ऐलान करता है। अब आप गौर कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से ऐलान क्या हम अपने कान से सुन सकते हैं या आंखों से देख सकते नहीं, बल्कि हमारे कान की सुनने की जो ताकत, हमारे आंखों के देखने की जो सलाहियत है, इन दोनों आदा से बड़ी दलील और इन दोनों आदा से कभी चीज़ हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकलने वाला कलिमा है, जिसमें आपने इस बात की खबर दी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर बंदे से इस बात का सवाल करता है, मुतालबा करता है कि बंदा अल्लाह से रिज़्क़ मांगे, बंदा अल्लाह से दुआ करे, बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन की बख्शिश का तलबगार बन जाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल करने के लिए बंदे को इस बात की दावत देता है कि अल्लाह कबूल करेगा, तुम सवाल करो। आइए मैं आपको बताऊं, सवाल के सिलसिले में, दुआ के सिलसिले में कुछ बुनियादी बातें हैं जिनका बरकार लाना हर दाई के लिए ज़रूरी है। उनमें पहली बात तो ये है कि अगर कोई इंसान चाहता है कि उसकी दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल करे, तो उस पर फर्ज है कि अपने आप को हराम से बचा ले, हराम रिज़्क़ से दूर कर ले, क्योंकि जो इंसान हराम का आदी होता है, जिस इंसान की ज़िंदगी में हलाल और हराम की तमीज़ ना हो, ऐसा इंसान अगर मुसाफिर भी हो, हज के सफ़र में भी हो, और ऐसे मौके पर दुआ की कबूलियत के ज़्यादा इम्कानात हैं, फिर भी उस इंसान को जब वो हाथ उठाकर दुआ करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने, तो फरिश्ता कहता है तेरी दुआ कबूल नहीं होगी, क्योंकि तेरी परवरिश, तेरी ग़िज़ा हराम की है। दूसरी बात में भाइयों, दुआ के सिलसिले में जिसका एहतमाम करना ज़रूरी है, वो बात ये है कि इंसान दुआ में अल्लाह रब्बुल आलमीन से किसी के रिश्ते के काटने का सवाल न करे, अल्लाह की नाफरमानी का सवाल न करे, तो ऐसे इंसान की दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल करते हैं। दुआ के सिलसिले में एक अहम बात जिसका जानना हर दाई के लिए ज़रूरी है, वो बात ये है, जब भी हम में से कोई इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करे, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, इज़ा दआ अहदुकुम फलयअज़िमिल मसअला फ़इन्नल्लाह ला युज़िउ शै। जब भी तुम में से कोई इंसान अल्लाह से दुआ के लिए अपने आप को मुस्तैद पाए, तो उसे चाहिए कि यकीन के साथ, उसे चाहिए कि पूरे अज़्म के साथ, उसे चाहिए पुख्ता सबूत के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करे। क्यों? आप दुआ अल्लाह से कर रहे हो, जो अल्लाह आसमान और ज़मीन के खजाने का मालिक है, जिस अल्लाह को बंदे की दुआ कबूल करते हुए खुशी होती है, जो अल्लाह बंदे के सवाल को पूरा करने के लिए तैयार बैठा हुआ है, उस अल्लाह रब्बुल आलमीन से आप दुआ करते हो। लिहाजा पूरे यकीन, पूरे इल्हा के साथ और पूरे इसरार के साथ दुआ करो, अजीमत पैदा करो अपने सवाल में। और अल्लाह के रसूल ने यह भी बयान किया कि इंसान की दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल नहीं करता। कौन इंसान, कौन सी दुआ करने वाला इंसान जिसकी दुआ अल्लाह कबूल नहीं करता? नबी बयान करते हैं, तुम में से किसी शख्स की दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल करता है मालम यस्ताजिल, जब तक वो उजलत से काम ना ले। सहाबी ने सवाल किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उजलत से काम लेने का मतलब क्या हुआ? तो आपने कहा, तुम में से कोई शख्स दुआ में कहता है कि मैंने तो अल्लाह से दुआ की, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल किया या मेरी दुआ कबूल नहीं किया। मुझे ये नहीं पता कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरा सवाल पूरा करेगा या पूरा नहीं करेगा। तो अगर इस तरह आप दुआ करते हैं, तो आपको गोया अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत में शक है। आप दुआ भी करते हो, अपने आप को थकाते भी हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की कबूलियत से महरूम कर लेते हो। इसीलिए नबी ने कहा, जब तुम में से कोई इंसान दुआ करे तो ये ना कहे अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली इन शि'त, बल्कि अज़ीमत के साथ दुआ करते हुए कहे, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन तू मुझे दे दे, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन तू मुझे माफ़ कर, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन तू रिज़्क़ का मालिक है, तू मुझे रिज़्क़ दे। दुआ के सिलसिले में एक और बात जिसका एहतमाम मेरे भाइयों दुआ करते वक्त इंसान को करना चाहिए, वो बात ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से आप जिस चीज़ का सवाल कर रहे हो, जिस चीज़ को मांगते हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने आप को बहुत सारी सिफात से मुत्तसिफ़ किया है। तो जो भी सवाल आपको करना हो, उस सवाल से पहले अल्लाह की तारीफ उन नामों के ज़रिए, उन सिफात के ज़रिए करो जो सिफत
آپ किस सिफत का अल्लाह रब्बुल आलमीन से सवाल करने वाले हो। मसलन आपको मग़फ़िरत तलब करना है, आपको बख्शिश तलब करना है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिफाती नाम गफ्फार, सित्तीर, इस तरह के नामों का अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तरह के नामों का अपनी ज़ुबान पे विर्द कीजिए और इस बात को कहिए, अय गफ्फार मुझे बख्श दे, अय सित्तीर मेरे उयूब पर पर्दा डाल दे। और रिज़्क़ जब तलब करना हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिफत रज़्ज़ाक़ियत का हवाला दीजिए। या रज़्ज़ाक़, अय रज़्ज़ाक़ जो सारे ज़मीन के रिज़्क़ का मालिक है, तो मुझे अपने रिज़्क़ से वाफ़िर हिस्सा दे दे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दुआ के चंद आदाब बताए हैं। बहरहाल भाइयों, हमें गौर करना चाहिए इन दलाइल पर, जो दलाइल हमारी दुआ की कबूलियत के लिए जामे और बेहतर साबित होते हैं। दुआ के सिलसिले में इसी तरह आप ये बात कभी फरामोश न करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के हम्द व सना, उसकी बड़ाई और किबरियाई, उसी की आज़मत का इज़हार करते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना, और दरूद भेजने के सिलसिले में आप जितना ज़्यादा दरूद भेजना चाहो आपको हक है। यहाँ तक कि सहाबी ने नबी से सवाल किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अल्लाह से दुआ करना चाहता हूँ, दुआ में आप पर दरूद भेजने के लिए कितना वक्त मैं खास कर दूं, क्या आधा वक्त खास कर दूं? आपने कहा तुम्हें हक है, और अगर उससे ज़्यादा तुम करो तो तुम्हारे लिए ज़्यादा नफा वक्त है। बहसूरत कई सवाल किया सहाबी ने, हर सवाल के जवाब पर हमारे नबी ने कहा तुम जितना ज़्यादा मुझ पर दरूद भेजोगे तुम्हारी दुआ की कबूलियत के ज़्यादा इम्कानात होंगे। मेरे भाइयों, ये चंद बातें हैं जिन बातों को मद्देनजर रखते हुए हमें इन मुबारक रातों में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करने की ज़रूरत है। फिर आप ये बात जान लें, ये मुबारक रात जो गिनती की चंद है, एक गालिबन आपकी गुजर चुकी, अब आपके इस महीने में 4 रातें आपसे इस बात का मुतालबा करती हैं कि आप अल्लाह की मग़फ़िरत, अल्लाह के रिज़्क़ को लेने के लिए अपने आप को बेदार करो, अपने बिस्तरों से अलग कर लो, अल्लाह के घर को आबाद करो मुसलमानों। और याद रखो, आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से इन दिनों में जिस बात का भी सवाल करेंगे, आदाब के साथ, शुरूत के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन उन तमाम चीज़ों को देने पर कादिर है। आपको ये बात अपने ज़हन में रखनी चाहिए कि ये मुबारक महीना जो इबादत में कसरत का महीना है, जूदो सखा का महीना है, फैयादी और इंफाक फी सबीलिल्लाह का महीना है, ऐसे महीने में आप अपने बेशकीमती माल को अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च करो। और माल खर्च करने के सिलसिले में आपके ज़हन में चंद बुनियादी बातें रहनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि माल किसी भी इंसान को देते वक्त आपको इस बात का यकीन, आपको इस बात का एतमाद होना चाहिए कि मैंने अपने फलां भाई को, मैंने फलां सवाल करने वाले इंसान को अपना माल दिया और वो माल जायज़ तरीके से सही रास्ते में खर्च होगा। मेरे भाइयों, इस महीने में ज़कात का मामला या ज़कात के अलावा अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का मामला आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन से करीब कर देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन का गज़ब आपसे दूर होगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें आपके लिए साया कदम होंगी। लिहाजा ज़रूरी है ज़कात के अलावा अपना कीमती माल, अपना महफूज माल, अपना हलाल माल जब तक आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च नहीं करते उस वक्त तक आप नेकी नहीं पा सकते, उस वक्त तक आप अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकर्रुब हासिल नहीं कर सकते। और ये भी आपको याद रखना चाहिए कि आप अपने ज़कात के माल को या अपने सेब माल को खर्च करते हुए थोड़ी सी हिकमत से अगर आप काम लें तो मामूली सी हिकमत आपको ज़कात का सवाब देने के साथ साथ कुछ और सवाब से आपको करीब कर देगा। और वो हिकमत ये है, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, अस्सदक़तु अलल मिस्कीन सदक़ा व अला ज़ी रहमिन सदक़तुन व सिला। ऐ लोगों, सदका किसी मिस्कीन को देना जिस मिस्कीन का हक है तुम्हें सिर्फ सदक़े का सवाब देगा, लेकिन अगर तुमने इस सदक़े को अपने किसी रिश्तेदार को दिया जो उस सदक़े का मुस्तहिक है तो तुम्हें 2 अजर मिला। एक तो सदका देने का अजर मिला और दूसरा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं तुम्हारी कराबत के जोड़ने का, तुम्हें रिश्ते को जोड़ने का, क्योंकि आपको मालूम है रिश्ता जोड़ना इस्लाम में मतलूब है। यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बुल्लुल अरहाम बोलो बिसलाम, ऐ लोगों रिश्तों को ताज़ा करो, रिश्तों को सर बनाओ, अगर से सलाम के जरिए ही क्यों ना हो। यानी इंसान अगर बड़ा मशगूल है और जाने पर कादिर नहीं है तो कम अज कम वो रिश्ते को जोड़े इस अंदाज में कि अपने रिश्तेदार को सलाम अर्ज करे, सलाम पहुँचाए किसी भाई के जरिए। आज टेलीफोन का ज़माना है, आज वसाइल का दौर है, ऐसे दौर में हम लोग अपने रिश्तेदारों का, अपने कराबतदारों का लिहाज और ख्याल बहुत सारे एतबारात से कर सकते हैं।
اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہت ساری احادیث میں ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ اگر ہماری سوسائٹی میں یتیم لوگ ہیں، بیوہ لوگ ہیں، نادار لوگ ہیں نعوذ باللہ، تو ایسے لوگوں کی کفالت یا ایسے لوگوں کی رعایت ہمارے لیے ایک اجر نہیں بلکہ 2 اجر کا باعث ہے۔ آپ اپنے مال کو خرچ کرنا چاہتے ہو، اگر یتیم پر آپ نے مال خرچ کیا تو یتیم کی مواسات، اس کی غمخواری کے ساتھ ساتھ آپ کو اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوگی۔ نبی نے بیان کیا انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور جو شخص یتیم کی کفالت کرنے والا ہو وہ دونوں قریب قریب رہیں گے، وہ میرے ساتھ رہے گا۔ آپ غور کیجئے، آپ کو پیسہ خرچ کرنا تھا، آپ نے اگر یتیم پر خرچ کیا تو گویا کہ آپ نے اپنے مال کے خرچ کرنے کا ثواب لینے کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں صحبت کو حاصل کر لیا۔ لہذا میرے بھائیوں، مال کو خرچ کرنے کے سلسلے میں آپ بہت محتاط ہو جائیں، آپ بہت حساس رہیں اور ان جگہوں میں مال کو خرچ کریں جہاں مال خرچ کرنا آپ کے لیے دوگنا اجر کا باعث ہو، آپ کو دوہرا ثواب ملے، کیونکہ یہ مطلوب ہے انسان کی زندگی میں کہ انسان ثواب کا عمل انجام دے، اس ثواب کے عمل کو انجام دینے میں حکمت کو پیش نظر رکھے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بعض لوگ جنہیں اللہ رب العالمین نے صحت اور توانائی دیا تھا، وہ لوگ نبی کے پاس صدقے کا مال سوال کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا کہ میں تمہارے لیے صدقے کو، یعنی تمہارے لیے زکوٰۃ کو حلال نہیں سمجھتا۔ دوسری حدیث میں آپ نے بیان کیا، جس حدیث میں آپ نے بیان کیا لا تحل الصدقۃ لغنی ولا ذی مرۃ صبی، اے لوگوں یہ صدقہ کسی مالدار کے لیے، اور مالدار کی تعریف جیسا کہ صحابہ کرام کے آثار سے ثابت ہے، مالدار اس انسان کو کہتے ہیں جسے اللہ رب العالمین نے صحت اور توانائی دیا ہو، جو کسب معاش پر قادر ہو، جو محنت اور مزدوری کے ذریعے اپنا پیٹ اور اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے پر قادر ہو، ایسا انسان غنی مانا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا صدقہ حلال نہیں کسی غنی کے لیے اور کسی ایسے انسان کے لیے جسے اللہ رب العالمین نے توانائی دیا ہو۔ مرہ کا مطلب جسے اللہ رب العالمین نے صحت سے نوازا ہو اور جو انسان کمانے پر قادر ہو، ایسے انسان کو صدقہ لینے سے باز رہنا چاہیے۔ اور ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ اگر کوئی ایسا انسان ہمارے سامنے سوال کرنے کے لیے آئے تو ہم اسے نصیحت کریں، اسے کام سے جوڑنے کی فکر کریں اور اسے اللہ رب العالمین کے آداب سے ڈرائیں، کیونکہ مسلمانوں یہ بات آسان نہیں، یہ بات بہت پیچیدہ اور بڑی مشکل ہے۔ آج ہماری سوسائٹی میں تنزلی اور پستی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ بہت سارے نوجوان نعوذ باللہ مانگنے کے عادی ہو جاتے ہیں، کام سے جی چراتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ عار اور ذلت اپنی پوری زندگی کے لیے خریدنے کے بعد وہ کام سے جی چرا لیتے ہیں اور پھر وہ تباہ ہوتے ہیں۔ اور قیامت کے روز ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو انسان اپنی قوت اور توانائی کے باوجود، اپنی ضرورت کے باوجود نعوذ باللہ سوال کرتا ہے تو ایسا انسان قیامت کے روز آئے گا، اس کے چہرے پر رونق نہیں ہوگی، اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی آپ نے بیان کیا جو انسان اپنی ضرورت کے باوجود مال کی زیادتی کے لیے سوال کرتا ہے کسی انسان سے تو ایسا انسان اپنے لیے گویا جہنم کے انگارے کو مانگتا ہے۔ اب اسے چاہیے کہ چاہے جہنم کے انگارے کو زیادہ مانگے یا کم مانگے۔ میرے بھائیوں، صدقات یا زکوٰۃ کے بارے میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کی سوسائٹی، آپ کے خاندان، آپ کے پڑوس، آپ کے یتیم اور آپ کی بیوہ، اس کے علاوہ اگر سوسائٹی میں ضرورت زیادہ ہے تو ایسے میں آپ اپنی سوسائٹی کا خیال کرو، اپنے پڑوس کا خیال کرو۔ یہ اللہ رب العالمین کا آپ سے حکم اور مطالبہ ہے۔ صدقے کے مال کو یا زکوٰۃ کے مال کو دوسرے علاقوں، دوسرے ملکوں میں ٹرانسفر کرنے کی اجازت ہے، لیکن اجازت یہ نچلا درجہ ہے۔ بہترین اور افضل درجہ یہ ہے کہ آپ اپنا زکوٰۃ یا اپنے صدقات کو اپنے قرب و جوار میں خرچ کرنے کی کوشش کرو اگر ضرورت مند لوگ ہیں۔ اللہ ہے کہ کچھ استثنائی حالات ایسی ہیں جن حالات میں آپ پر فرض ہو جائے گا کہ آپ اپنے زکوٰۃ کو ان مستحقین تک پہنچاؤ جو بھوکوں مر رہے ہوں، جو پریشان حال ہوں، جن پر اغیار نے ظلم و ستم کی چکی کو توڑ دیا ہو، یا جو لوگ نعوذ باللہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے بندہ ہونے کے باوجود
जालिमों के शिकंजे में जकड़ दिए गए हैं और उनकी ज़िंदगी बसर करने का कोई सामान नहीं है, या आपके इलाके या आपकी बस्ती में कुछ नादार और मुहताज किस्म के लोग बगैर मजबूरी पहुंच गए हों, तो ऐसे में ऐसे इंसानों पर खर्च करना हर इंसान का फर्ज और हर इंसान की जिम्मेदारी बनती है। मेरे भाइयों, इस महीने के हवाले से ये चंद बुनियादी बातें हैं जिन बातों का ख्याल करना, जिन बातों को अपनी ज़िंदगी में नाफिज करना हमारे लिए दर्जात की बुलंदी का बाइस है। इसी के साथ साथ आप ये बात अपने ज़हन व दिमाग में रखिए कि अगर कोई इंसान अपने माल के ज़कात को नहीं देता, तो ऐसे इंसान के बारे में ज़बरदस्त वईद अहादीस में वारिद हुई हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस जिसके रावी अबू दर ग़िफ़ारी हैं, वो कहते हैं कि दुनियावी एतबार और आखिरत के एतबार से सबसे ज़्यादा घाटे और खसारे में है रब्बे काबा की कसम। इस बात को आपने 2 मरतबा कहा और फिर उन लोगों की तारीफ करते हुए कहा जिन्हें अल्लाह ने दुनिया में ज़्यादा माल दिया है। उनके पास बकरियाँ भी हैं, उनके पास ऊँट भी हैं, उनके पास अल्लाह ने मालो दौलत भी दिया है, ज़ेवर और जवाहिरात भी अल्लाह ने दिया है। लेकिन जो इंसान भी मरेगा ऐसी हालत में कि वो अपने माल के ज़कात को अदा नहीं करेगा, तो ऐसे शख्स के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में 3-4 ज़बरदस्त वईद और सख्त धमकी वारिद हुई। मुसलमानों, उन धमकियों को सुनने के बाद हमें बेकरार हो जाना चाहिए। पहली धमकी तो ये है, नबी ने बयान किया, क़यामत के रोज़ ऐसा इंसान नबी की ज़ुबान मुबारक पर लानत का मुस्तहिक होगा, मलऊन है वो मालदार जो अपने माल की ज़कात को अदा नहीं करता। और दूसरे हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उसका माल अगर बकरी की शक्ल में है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे मोटी बकरी बना देगा, तंदुरुस्त बकरी बना देगा, और क़यामत के रोज़ बकरी उसे अपने खुर से, अपने पैर से रौंदते हुए अपनी सींगों से तकलीफ पहुंचाएगी। इसी तरह अगर कोई इंसान अपने पैसे और दिरहम और दिनार में ज़कात नहीं देता, तो क़यामत के रोज़ ये दिरहम और दिनार उस इंसान के लिए दहकते अंगारे की शक्ल में आएगा, दर्दनाक सांप की शक्ल में आएगा, डरावनी शक्ल की सांप की शक्ल में आकर इंसान को डसेगा, उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन अज़ाब देगा। बहसूरत अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमत का शुक्र यह है कि अल्लाह ने अगर मालदार बनाया, अगर ज़कात हम पर फर्ज की, तो हम ज़कात की अदायगी में किसी भी तरह की सुस्ती ना करें, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 लोगों पर लानत भेजते हुए उसमें एक ऐसे इंसान को शुमार किया जिसकी सिफत आपने बयान किया, लाविस सदका, जो अपने सदके यानी ज़कात को अदा करने के सिलसिले में साल मुकम्मल हो गया लेकिन टाल मटोल से काम लेता है, अभी वक्त का इंतजार करता है, अभी थोड़ी गफलत में है, तो ऐसे इंसान के बारे में नबी ने कहा वो क़यामत के रोज़ नबी की ज़ुबान पर लानत को मुस्तहिक होगा। मुसलमानों, ये चंद बातें हैं जिन पर हमें गौर करना चाहिए और अल्लाह से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दीन की सही समझ दे, सिरात मुस्तकीम की हिदायत दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम फस्तग़फ़िरूह। الله أكبر الله